I welcome you all to this Education Expo 2024 organized by Minds in Motion organization. Today is the 5th day of Education Expo 2024 and I am very glad to inform you that throughout the day, since morning till evening, it was packed with teachers, parents and students. In the morning sessions, we had students' science fair exhibition. And our young minds, they made brilliant science projects they made and they presented. They were evaluated and they were awarded. This science fair exhibition was not only about the students. Behind this science fair exhibition, there is a team. There is a team of organizing members. There is a team of teachers, those who have taken great efforts to train these students. There are school managements, principals, headmasters, management, teaching staff, non-teaching staff. Many people are there behind the success of this science fair exhibition. After that, we had some more programs from Al Irfan School also. And now we are in the prime time evening program where we have world's renowned motivational speaker, NLP master trainer, Suren Kolkankar. I'll brief you something about Suren Kolkankar. Suren Kolkankar is from Goa and he's among us to energize, to encourage, to motivate and to introduce us with some realities. There are some realities we are not aware of. So before we start the session, I would like to call Abuzar. Please come on stage and recite Quran. Abuzar, please come on stage and start this evening program, this prime time program with the recitation of Holy Quran. Abuzar. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض
وهو العزيز الحكيم صدق الله العظيم. Before we go ahead with for our prime time program, I have a little announcement that among us, a great teacher is available here. He is a great motivator, and he has been awarded by many awards, and it's a pleasure moment for us that he is going to be awarded by some national agencies. A little introduction I'll give you about Mr. Suren Kolkankar. He is a life coach. He is a business consultant. He is NLP master trainer, and he is a psychology counselor also. More than 20 countries he trained the people, and in India, in all major cities, he conduct his workshop, and most of his learners are trainers, psychologists, doctors, teachers, principals, motivational speakers, and he trained many motivational speakers, those who go around the country and they motivate the people. So he is the master of masters. It's a great pleasure for us to have such personality in Aurangabad. Little more I'll tell you about him. So he is certified and recognized by Master Trainer of NLP from Association of Neuro-Linguistic Program, ANLP International, CIC, UK, Trickle Academy, UK Team NLP, UK, and also internationally certified by American Board of NLP. He is international, he is the part of International NLP Association. Okay, by the way, I am again and again telling you NLP, NLP, and NLP. So you might be thinking about what is NLP, right? So I'll tell you what is NLP. NLP is neuro-linguistic programming. In simple language, it is the language of mind. We heard about languages like Hindi, Marathi, English, Gujarati, Bengali. We heard about many languages. How many languages we have in India? Can anyone tell me how many languages we have in India? Anyone? 1,000? 2,000? Right? Okay. So those are spoken languages. The languages we talk about is spoken languages. Can you tell me how many unspoken languages are there in India? How many unspoken? Or how many unspoken languages are there in the world? Can anyone guess? Yes, boys? How many unspoken languages are there in the world? Any guess? Girls? Girls look smarter. So I expect answer from girls. Can anyone tell me how many unspoken languages are there in the world? How many? Yes? I have a lot of expectation from you girls. 1,000. Okay. So I'll tell you one thing. There are 1,000, 5,000 spoken languages in the world. But you know, unspoken languages. जितनी दुनिया की आबादी है उतने अनस्पोकन लैंग्वेज है. व्हाट इज अनस्पोकन लैंग्वेज? जब मैं अपने आप से बात करता हूं वो अनस्पोकन लैंग्वेज है. जब मैं अपने आप को कुछ समझाता हूं वो अनस्पोकन लैंग्वेज है. किसी बात को लेकर जब मैं परेशान होता हूं वो अनस्पोकन लैंग्वेज है. जब मैं कोई डिसीजन लेना चाहता हूं उस समय मैं अपने आप से बात करता हूं वो अनस्पोकन लैंग्वेज है. एंड बिलीव मी, अनस्पोकन लैंग्वेज इतनी इंपॉर्टेंट है कि आपका हर वर्ड जो आप बोलते हो, आपका हर काम जो आप करते हो, उससे पहले आप खुद से बात करते हो. Am I right on this? How many you agree with me? हम कुछ भी काम करने से पहले, किसी से भी बात करने से पहले खुद से बहुत बातें करते हैं.
कितने लोग एग्री करते? जस्ट रेज द हैंड, हाउ मेनी ऑफ यू एग्री विथ मी? करते हैं ना? हम खुद से बहुत बातें करते हैं, लेकिन कभी हम सीखते नहीं हैं कि जब हम खुद से बात करें तो कैसे बात करें. सो न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग इज ऑल अबाउट प्रोग्रामिंग योर ओन लैंग्वेज व्हेन यू टॉक टू योरसेल्फ. सो NLP is all about this, and NLP is not about language, but NLP is about your physiology. हमारी बॉडी किस तरह से रिएक्ट करती है, यह भी NLP का पार्ट है. फॉर एग्जाम्पल, कभी वक्त मिसाल के तौर पे किसी बात को सोचकर या किसी की कोई बात को सुनकर बॉडी में कुछ चेंजेस होते हैं ना? या तो शिवरिंग होता है, या तो गला सूखता है, या तो लिप्स शिवरिंग करते हैं, या तो आपको पसीना आने लगता है. सो व्हाई इट हैपेंस? कुछ सोचकर, कुछ सुनकर, कुछ देखकर, ये हमारी बॉडी में ये चेंजेस होता क्यों है? क्योंकि हमारी बॉडी में पूरा एक नर्वस सिस्टम है, और ये पूरा नर्वस सिस्टम हमारी अनस्पोकन लैंग्वेज की बिना पर चलता है. कभी भी आप अगर टेंशन में हो तो आपका चेहरा मुस्कुराएगा नहीं. आप अगर गुस्से में हो तो आपका चेहरा लाल हो जाता है. व्हाई? ये आपके चेहरे को किसने कहा? ये आपके गले को किसने कहा कि कुछ अहम बात करने से पहले आपका गला सूखना चाहिए? ये किसने ऑर्डर दिया उसको? आपके नर्वस सिस्टम ने. So what neuro-linguistic programming does? Neuro-linguistic programming is all about programming your neurons. And we know that in our body, millions of neurons are there. हमारी बॉडी में जो सेल हम कहते हैं ना, सेल, ये हमारे बॉडी में जो सेल है, ये एक दूसरे से कम्युनिकेट करते रहते हैं. और जब एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं तो उसका रिएक्शन बॉडी पे होता है, उसका रिएक्शन बिहेवियर में होता है, उसका रिएक्शन हमारी थिंकिंग पे होता है, उसका रिएक्शन हमारे इमोशंस पे होता है. सो NLP इज ऑल अबाउट मैनेजिंग माय न्यूरॉन्स. सो आई होप यू अंडरस्टूड NLP, बिकॉज द स्पीकर ही इज नॉट गोइंग टू गिव यू इंट्रोडक्शन ऑफ NLP. इन सिंपल वर्ड आई विल टेल यू कि NLP, when first time NLP was documented, जब लिखी गई थी NLP की पहली बुक, पता है उस बुक का नाम क्या था? उस बुक का नाम था द मैजिक ऑफ स्ट्रक्चर. द मैजिक ऑफ स्ट्रक्चर. यानी उसका नाम NLP नहीं था, उसका नाम लैंग्वेज नहीं था, उस बुक का नाम था द मैजिक ऑफ स्ट्रक्चर. और स्ट्रक्चर किस चीज का? स्ट्रक्चर उस चीज का कि हम सोचते कैसा है, हम फील कैसा करते हैं, हम किसी भी सिचुएशन को रिएक्ट कैसे करते हैं, हम डिसीजन कैसा लेते हैं. ये सारी चीजें जो है ना, फ्रेम हो चुकी है. फ्रेम. मिसाल के तौर पे जब बॉयज है, अब्बा जब डांटते हैं, अब्बा डांटते हैं ना, तो जब अब्बा डांटते हैं तो बच्चा सहम जाता है, शिवरिंग करता है, कोई ज्यादा सेंसिटिव हो तो रोता भी है. ठीक है? क्यों आपको पता है? क्योंकि अब्बा जब डांटते हैं तो डांटने के सारे उसूल फॉलो करते हैं. आवाज भी ऊंची होती है, बॉडी लैंग्वेज भी अग्रेसिव होता है, गुस्सा, चेहरा भी लाल होता है. यानी मिसाल के तौर पे कोई अगर बेटा लेट आता है तो अब्बा क्या कहते? कहां गया था, इतना टाइम लगता है क्या? बच्चा कैसे करता है? वो सहम जाता है. जस्ट इमेजिन अगर अब्बा इस टोन में डांटे, कहां गया था, इतना टाइम लगता है. मुझे बताओ उस बच्चे पे कोई इंपैक्ट है क्या? है कोई इंपैक्ट? सो यू नो दिस इज कॉल्ड स्ट्रक्चर. और अगर हम ये स्ट्रक्चर समझ गए तो बिलीव मी, वॉट एवर वी डू, वॉट एवर वी फील, हमारे पास एक स्ट्रक्चर होगा. और अगर हम उस स्ट्रक्चर को यूज करेंगे तो किसी और का बिहेवियर
मुझे डिस्टर्ब नहीं कर पाएगा। और अगर स्ट्रक्चर होगा तो मैं जिस सिचुएशन में जो करना चाहूं, जो रिजल्ट चाहूं, वो मैं ले सकता हूं, अगर मेरे पास स्ट्रक्चर होगा तो एनएलपी इज ऑल अबाउट स्ट्रक्चर्स। चलिए, सो आई होप यू अंडरस्टूड एनएलपी। आवर गेस्ट इज ऑन द वे एंड so after this program we have one more program. There will be award ceremony to our dear principals. As we know that principals are the educational leaders. So please stay here, audience. I request audience, please stay here and attend that award ceremony. So now we'll start the session. The guest is already there at the gate. So today's session is very interactive session because Mr. Suren Kolkankar he is going to share something and he is going to ask you something. So my request to everyone, please be very comfortable and enjoy this session. Please respond to the speaker. Okay, please respond to the speaker and whatever doubts you have, whatever questions you have, you can ask him. Okay, and he will answer in a structure. He will answer in structure. Okay, so our guest is on the gate. Just in 2 minutes he will be here. Where is Andallah? So our today's motivational speaker, NLP Master Trainer, Suren Kolkankar from Goa. He has arrived here, more than 20 countries. He has conducted his training programs and he is in the hall. Please put your hands together to welcome one and only Suren Kolkankar. Welcome our today's guest, Mr. Suren Kolkankar. He is there. We welcome you, sir, to the historical city of Aurangabad. Aurangabad is a historical city, and we not only read the history, we make the history. And this program is going to be a historical program where Suren Kolkankar will address you. So over to Mr. Suren Kolkankar. परवेज भाई ने जो मेरा इंट्रोडक्शन दिया है, काफ़ी लोगों को भी पता चला होगा मैं गोवा से हूँ। सभी को पता है? तो गोवा जो है किस चीज़ के लिए फेमस है? समंदर के लिए। और जो समंदर की जब हम बात करते हैं, समंदर में काफ़ी लहरें होती है। तो ऐसा कहा जाता है कि गोवा में हमारी जो हिंदी है वो भी वो लहरों की तरह है, समंदर की लहरों की तरह। तो अगर, क्योंकि औरंगाबाद में मैंने जो हिंदी और उर्दू देखी उसकी एक लेवल ही अलग है, तो अगर कुछ गलती मुझसे होती है हिंदी को लेकर, प्लीज़ माफ़ कीजिएगा। So good. I'm super excited. और आज का जो एजुकेशन एक्सपो का ये जो इवेंट है, Yes, I request everyone, those who are in the ground, please come in the auditorium. The program is going to start. Mr. Suren Kolkankar is there on the stage. Please, मेरी दरख्वास्त है, जो लोग बाहर खड़े हैं, मेरी उनसे रिक्वेस्ट है कि वो ऑडिटोरियम हॉल में आ जाए। प्रोग्राम शुरू हो चुका है। आप लोगों से दरख्वास्त है कि आप अंदर आकर चेयर्स पर बैठ जाए। प्लीज, जो लोग बाहर खड़े हैं वो अंदर की तरफ आकर बैठ जाए। खवातीन को बैठने का चांस दे। और मेरी दरख्वास्त है बॉयज से, जो यंग बॉयज है वो पीछे खड़े हो सकते हैं। खवातीन को, बुजुर्गों को बैठने के लिए जगह दे आप जी। थैंक यू सो मच सर, ओवर टू यू। सो अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले आई लाइक टू शेयर माई ग्रेटिट्यूड, जिनकी वजह से मैं यहाँ पे आज हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, एजुकेशन एक्सपो जो है उसके ऑर्गेनाइजर्स, कमिटी और द एंटायर टीम।
परवेज भाई जिन्होंने ये इनिशिएटिव लिया, और हमारे टीम में काफ़ी सारे नायाब हीरे हैं, उसमें से एक हीरा परवेज भाई है। उनके थ्रू हमने एजुकेशन एक्सपो के बारे में सुना था और उसी की बदौलत आज हम यहाँ पे हैं। और उन्हीं के साथ उनकी जो टीम है जिसको लीड कर रहे हैं मुस्तकीम और अरशद और एंटायर टीम, मतलब जो जिस तरीके से हमारा वेलकम हुआ है राइट फ्रॉम द एयरपोर्ट टू द एंटायर सिटी, आई एम रियली ग्रेटफुल टू एंटायर टीम। और उसी के साथ साथ जैसे गोवा में काफ़ी लोगों को पता होगा, आप लोगों को आज़ादी मिली 1947 में, हमें मिले 1961 में, क्योंकि पुर्तगीज़ का शासन था। और हमारी जो लैंग्वेज है उसमें पुर्तगीज़ लैंग्वेज भी हम बात करते हैं, और एक शब्द है जिसको हम बार बार यूज़ करते हैं, जिसको है सुशेगाद। किसी ने ये वर्ड सुना है गोवा के बारे में? सुशेगाद एक पुर्तगीज़ वर्ड है। सुशेगाद मतलब एकदम रिलैक्स। तो ऐसा कहा जाता है कि गोवा के जो लोग हैं बहुत रिलैक्स होते हैं, और ख़ास तौर पे जब ऐसा कोई ट्रेनिंग हो या फिर शाम की कोई गैदरिंग हो तो इकट्ठा नहीं होते, आराम से रिलैक्स होते हैं। पर आज जो मैं यहाँ पे आप लोगों की जो माहौल देख रहा हूँ, एंट्री देख रहा हूँ, और जिस तरीके से आप लोग इकट्ठा हुए हैं, यू नो, सबसे पहले आपके लिए जोरदार तालियां, क्योंकि इस समय पे 8 बजे के बाद यहाँ पे ये माहौल बनाना बहुत बड़ी बात है। मुझे पता है कि औरंगाबाद के लोग कब रिलैक्स होते हैं, मुझे पता है, खास तौर पे नान खलिया खाने के बाद। आई एम श्योर नान खलिया खा के कोई नहीं आया, नहीं तो मैं यहाँ पे बात करूं और आप एकदम रिलैक्स हो चुके हो। हालांकि मैं नान खलिया खा के आया हूं आज, क्योंकि वो एक जोश आ जाता है जो मुझे कहा गया था और मैंने वो एक्सपीरियंस भी किया है। सो गुड, आर यू ऑल एक्साइटेड फॉर दिस प्रोग्राम? आवाज नहीं आ रही है? यस, ग्रेट, बढ़िया है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे कुछ सिखाने नहीं आया हूँ, कुछ पढ़ाने नहीं आया हूँ। काफ़ी सारी यहाँ पे डिग्निटरीज है जिनसे हमने सीखा है। मैं सिर्फ मेरा एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए यहाँ पे आया हूँ आप लोगों के साथ। और जो NLP है, जो NLP फॉर एक्सीलेंस, ये जो प्रोग्राम है, जो हम यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें सीखने वाले हैं। तो यहाँ पे NLP क्या है ये भी आप गूगल पे देख सकते हैं। तो मुझे सिर्फ आपको अनुभव करना है, एक्सपीरियंस देना है। तो जब एक्सीलेंस की बात होती है, कितने लोगों ने 3 इडियट मूवी देखी है? प्लीज रेज योर हैंड। बढ़िया, फैंटास्टिक। तो 3 इडियट मूवी में आमिर खान कहते हैं कि कामयाबी के पीछे मत भागो, सक्सेस के पीछे मत भागो, क्योंकि आजकल हम सिर्फ सक्सेस के पीछे भाग रहे हैं। वो कहते हैं काबिल बनो। जब आप काबिल बनते हो ना तो सक्सेस आपके पीछे आती है। तो ये बहुत जरूरी है, खास करके आज जो यूथ है, जिस तरीके से आज माहौल है, आज हम दूसरों को देख के कामयाबी के पीछे भाग रहे हैं। मुझे भी उनके जैसे बनना है, मुझे भी उनके जैसा बनना है। तो वो जोश है, पर जोश के साथ जरूरी है। तो उसके लिए बहुत जरूरी है काबिल बनना। जो मेरे इंस्पिरेशन है डॉक्टर अब्दुल कलाम साहब, उन्होंने एक सपना देखा था कि 20वीं सेंचुरी में जो हमारी जो यूथ होगी वही एक सपना लेके आगे बढ़ेगी, और वो समय आज आ चुका है। और जो एजुकेशन एक्सपो जो कर रहा है यूथ के लिए, कमाल की बात है। तो मुझे लगता है एजुकेशन एक्सपो की टीम के और कम्युनिटी के लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए। तो अगर काबिल बनना है तो कुछ चीजें जरूरी होती है, और एक फॉर्मूला है मैं आपसे आज शेयर करूंगा, और वो फॉर्मूला है जिसको हम कहते हैं CMF। CMF, C स्टैंड्स फॉर कम्युनिकेशन। मतलब अगर आपको सच में काबिल बनना है और कामयाब बनना है तो कम्युनिकेशन इज द की। कम्युनिकेशन ऐसा नहीं कि आप इंग्लिश में ही करो, वो कोई भी लैंग्वेज में हो सकती है, पर कम्युनिकेशन आप कैसे कम्युनिकेट करते हो। और आज मैं कुछ आपके साथ टिप्स भी शेयर करूंगा कैसे इफेक्टिव कम्युनिकेशन हम कर सकते हैं। M स्टैंड्स फॉर माइंडसेट। कोई भी चीज जब आप देखते हो, आपके माइंडसेट किस तरीके से, उसी के ऊपर सब चीजें होती है। अगर आपके माइंडसेट स्ट्रांग है तो आप कोई भी चीज अचीव कर सकते हो। और उसी के साथ साथ आपका फोकस, आप किस तरीके से चीजों पे फोकस करते हो। तो 3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, और खास तौर पे यहाँ पे काफी स्टूडेंट्स में देख रहा हूं, तो बहुत जरूरी है आपका कम्युनिकेशन, आपका माइंडसेट और फोकस। तो उसके लिए सबसे पहले एक हम अभी एक्टिविटी करेंगे, क्योंकि यहाँ पे एक्सपीरियंस इंपॉर्टेंट है। क्या आप एक्टिविटी के लिए तैयार हो? शायद कुछ लोग सोच रहे हैं एक्टिविटी मतलब भागना है क्या? कुछ नहीं है, जहां आप बैठे हो वहां से कर सकते हो। वेरी गुड। तो इस एक्टिविटी में हम देखेंगे कि खुदा ने जो हमें जो माइंड दिया है उसका हम किस तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं।
रिसर्च कहता है कि जो हमारे पास पोटेंशियल है उसका 1%, 1% भी हम उसका यूटिलाइजेशन नहीं कर पा रहे। तो उसके लिए हम एक एक्टिविटी करेंगे। उसके लिए आपको क्या करना है, आप सभी को आंखें बंद करनी है, रिलैक्स होना है, और जो आंखें खोल के कर सकते हैं वो भी कर सकते हैं। और इमेजिन कीजिए आप घर में हो, अब आप घर में किचन में हो, और किचन में वहां पे रेफ्रिजरेटर है, फ्रिज है। उसको धीरे से दरवाजे को खोलिए, और जैसे दरवाजा खुलता है ठंडक को महसूस कीजिए। और वहां पे कॉर्नर में नींबू है, उस नींबू को लीजिए, और अभी किचन में चाकू है, चाकू से नींबू को काटिए 2 हिस्सों में, और उस नींबू को खुशबू को स्मेल कीजिए। और उसमें से एक जो हिस्सा है नींबू का, उसको आपके हाथ में लीजिए, जबान की तरफ लीजिए, उस खुशबू को स्मेल कीजिए, और पूरे नींबू को अपने जबान पे निचोड़िए। और जैसे हम निचोड़ोगे आप देखोगे कि वो नींबू वाला टेस्ट आ रहा है। स्मेल कीजिए, टेस्ट कीजिए, और अपने आंखें खोलिए। डिड यू मैनेज टू एक्सपीरियंस? आई एम श्योर काफी लोगों ने किया होगा, कुछ लोग पहली बार करें, वक्त लगेगा। अभी मुझे आपसे एक सवाल है, कहां पे है वो नींबू? आपके माइंड में है, रियलिटी में वो नींबू है ही नहीं। मतलब जो चीज हकीकत में जो थी नहीं, उसको हमने क्रिएट किया। मतलब इसका मतलब क्या है, हर दिन हम खुद से क्या बात करते हैं उसका असर हमारे माइंडसेट पे होता है। काफी बार हम दूसरों को देखते हैं और हम खुद को कंपेयर करते हैं, मैं उनके जैसा नहीं हूं, और इससे आप खुद को नीचे लेके जाते। बहुत जरूरी है आपको खुद को एक अलग लेवल पे देखिए। जैसे हम आईने में देखते हैं, आईने में जब हम देखते हैं खुद को, उस तरीके से हम देखना चाहते हैं। पर क्या आपको लगता है आईने में जो आप देखते हैं, क्या आप सही में वही हो? क्या लगता है आपको, जो आईने में आपको देख रहे, क्या सही में आप वही हो जो आईने में दिख रहा है? वो आपका एक रिफ्लेक्शन है, पर एक अंदर का आईना है। अगर वो अंदर के आईने से आप देखोगे तो आप उससे भी खूबसूरत हो, क्योंकि आपके जहन में जो चीज है उस तरीके से आप खुद को आईने में देख रहे हो। आप देख रहे हो मुझे आज मेरी हेयर स्टाइल को ऐसे बनानी है, आज मेकअप थोड़ा इस तरीके से बनाना है, तो आप उस तरीके से देखते हो। बहुत जरूरी है कि आप अंदर के आईने से कैसे देख रहे हो। तो इसके लिए बहुत जरूरी है आप खुद से कैसे बात करते हो। और अक्सर हमने देखा है कि एक शब्द हम बार बार यूज कर रहे हैं, उसका नेगेटिव इंपैक्ट माइंड पे हो रहा है, और वो है ना। कितनी बार हम कहते हैं मत करो, और जैसे हम जितना बोलोगे मत करो मत करो मत करो, होता यह है कि आपका जो माइंड है उस पर ज्यादा ध्यान देता है। जैसे अगर मैं आपको पूछूं कोई, आप ना अपने जितने भी लाइफ में परेशानियां हैं उसके बारे में मत सोचो, तो क्या आपके दिमाग में आ रहा है? परेशानियां। अगर मैं आपको बोलूं एक ना पिंक कलर, एक गुलाबी रंग के हाथी के बारे में बिल्कुल मत सोचना, गुलाबी रंग के हाथी के बारे में बिल्कुल मत सोचना, क्या आ रहा है? वो पिंक कलर का हाथी, गुलाबी रंग का हाथी आ रहा है। शायद वो बेबी एलिफेंट हो, कोई भी हो। तो जितना सोचे कि क्या नहीं सोचना है, ज्यादा सोचते हैं। आप देखो कुछ जगह है वहां पे लिखा हुआ होता है यहां पे कचरा फेंकना मना है, पर क्या वो एरिया साफ रहती है? वहां पे लिखा भी होता है कि फाइन है, फिर भी हम कचरा फेंकते हैं। क्योंकि जितना हम बार बार फोकस करते हैं मत करो, तो हम ज्यादा उस पर ध्यान देते हैं। तो इसके लिए अगर हम खुद से अगर बात करते हैं कि मुझे ये नहीं करना है, मुझे ये नहीं सोचना है, तो आप उसको हकीकत बना रहे हो। आपको ये ध्यान रखना है कि आप क्या चाहते हो, आप क्या सोचते हो। जैसे कि आप यहां पे हो, आप क्या बनना चाहते हो, आपका गोल क्या है। क्योंकि जब हम मोटिवेशन की बात करते हैं, 2 तरीके का मोटिवेशन होता है। एक है पुश मोटिवेशन, मतलब आपको पुश करना होता है। काफी बार हम खुद को पुश करते हैं कि मुझे आज मोटिवेट होना है। जैसे कि आप इस प्रोग्राम में आए हो, ये टेम्पररी मोटिवेशन है, कुछ समय के बाद वो मोटिवेशन चला जाता है। पर यहां से जो आप सीख के जाओगे और उसको अमल करोगे, अप्लाई करोगे, तो वो मोटिवेशन हमेशा आपके साथ रहेगा। और जो पुल मोटिवेशन है वो है आपके गोल्स, आप क्या हासिल करना चाहते हो, एक विजन। जब आपका पूरा फोकस उस विजन की तरफ होता है, पूरा फोकस उस गोल की तरफ होता है, तो वो आपको अपनी तरफ खींचता है। और वो
परमानेंट मोटिवेशन होता है। तो जैसे आप काफ़ी लोगों के जो मकसद है, गोल्स है, वो इंपॉर्टेंट है, विजन इंपॉर्टेंट है, अगर आप उस तरीके से सोचोगे तो ही आप आगे बढ़ोगे। अभी जब हम कम्युनिकेशन की बात कर ही रहे हैं, तो कम्युनिकेशन की जब हम बात करते हैं, हमें ये ध्यान में रखना है कि आप क्या कम्युनिकेट कर रहे हो, उसमें इंपॉर्टेंट है आप कैसे कर रहे हो। तो इंग्लिश में हम कहते हैं इट्स नॉट अबाउट व्हाट यू से, हाउ यू से। जैसे मैं आपको कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहता हूं, बधाइयाँ देना चाहता हूं, और मेरी बॉडी लैंग्वेज ऐसी है और मैं बोल रहा हूं कॉन्ग्रेचुलेशंस, कॉन्ग्रेचुलेशंस। क्या आपको महसूस हो रहा है? आप अपने दोस्तों को मिलते हो या फिर खास कुछ लोग हैं उनको मिलते हो, बोलते कॉन्ग्रेचुलेशंस, तो आप अंदर से बोलेंगे कॉन्ग्रेचुलेट कर रहा है या टांग खींच रहा है, क्या कह रहा है? तो हमेशा याद रखना, जैसे हमने देखा है पेरेंट्स, उनका इंटेंशन सही रहता है बच्चों से बात करने का, पर ना बात करते वक्त उनकी टोनलिटी में भी हाई है। शायद वो कह रहे कि ये मत करो, पर बोलते वक्त ये मत करो, पर उसी को अगर कह सकते हैं ये मत करो, आप टोन कैसे यूज करते हैं। तो कम्युनिकेशन में हम कहते हैं 3 चीजें इंपॉर्टेंट है, आपके लफ्ज, आपकी वॉइस टोनलिटी, आप किस तरीके से उसको ड्राइव कर रहे हो, और तीसरी चीज है आपकी बॉडी लैंग्वेज। और रिसर्च ये कहता है, 1970s में रिसर्च हुआ था, एक रिसर्चर थे अल्बर्ट मेहराबियन, उन्होंने ये रिसर्च किया था कि आपके जो लफ्ज है उनका इंपैक्ट सिर्फ 7% होता है, 7%। इट वॉज अ शॉकिंग रिसर्च। और 93% आपका कम्युनिकेशन होता है आपकी बॉडी लैंग्वेज और आपकी वॉइस। जैसे अगर मैं खुद से बात करूं ना, मैं आज बहुत खुश हूं, मैं 3 तरीके से बात कर सकता हूं, प्लेन वर्ड्स, वॉइस और बॉडी लैंग्वेज। जैसे मैं ऐसे बात करूं कि आज मैं बहुत खुश हूं, तो महसूस नहीं कर रहे, पर जब हम कह रहे आज मैं बहुत खुश हूं, तो हम महसूस कर पाते हैं। तो हमेशा याद रखना कि आप बात करते वक्त आप किस तरीके से बात कर रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। टीचर्स, उनका बहुत अच्छा इंटेंशन होता है बच्चों को पढ़ाना, आप किस तरीके से उनको टीच कर रहे हो। तो इट्स नॉट अबाउट व्हाट यू से, इट्स ऑल अबाउट हाउ यू से। और हमेशा याद रखना अपनी फिजियोलॉजी इंपॉर्टेंट है। तो इसके लिए मैं यहाँ पे एक डेमो करना चाहूँगा, और उसके लिए मुझे एक वॉलंटियर चाहिए जिनको ना कुछ तो मोटिवेशन या कॉन्फिडेंस, जैसे कि इंटरव्यू में जाना है तो कॉन्फिडेंस चाहिए, या फिर स्कूल में एग्जाम की टाइम पे एंजाइटी होती है। तो अभी एक हम डेमो करेंगे। इफ एनीबडी वुड लाइक टू पार्टिसिपेट, जिनको ना मोटिवेशन या कॉन्फिडेंस चाहिए, तो मैं यहाँ पे डेमो करूँगा, आप उसको एक्सपीरियंस कर सकते हैं। इज देयर एनीबडी वुड लाइक टू पार्टिसिपेट? Yes, we have one. Yes, let's have a round of applause for him. पानी। तो फैज हमारे बीच में है, और बहुत इंपॉर्टेंट है जब आप वॉलंटियरिंग ऐसे ग्रुप में करते हैं तो एक डर लगता है। फैज, डर है, ये कॉमन चीज़ है, पर बहुत अच्छी चीज़ होती है जब आप यहाँ पे आते हो ना, तो वो एक हिम्मत मिलती है। और वो कहावत भी है ना, हिम्मत मर्दा तो मदद खुदा, करेक्ट। तो वो हिम्मत रहनी जरूरी है। तो फैज, यहाँ पर आप आए हो और वॉलंटियरिंग का एक्सपीरियंस करना चाहते हो, तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि कौन सी फीलिंग को आप महसूस करना चाहोगे? हैप्पीनेस, हैप्पीनेस। तो काफ़ी लोगों के अलग अलग एक्सपेक्टेशन होते हैं, हैप्पीनेस, कॉन्फिडेंस, मोटिवेशन। तो मैं यहाँ पे अभी फैज को एक ऐसे स्टेट में लेके जाऊँगा जहाँ पे आप देखोगे कि हम खुद किस तरीके से खुद को हम मोटिवेट कर सकते हैं। क्योंकि काफ़ी बार हम अकेले होते हैं और हम खुश रहना चाहते हैं, और हम डिपेंड होते हैं इंस्टाग्राम या फिर कोई एक मूवी देखेंगे, और हम डिपेंडेंट से ज़्यादा रखते हैं। पर हमें ये ध्यान में रखना है, जो आप चाहते हैं, जैसे फैज खुशी चाहता है, कोई कॉन्फिडेंस चाहेगा, मोटिवेशन चाहेगा, ये मार्केट में अवेलेबल नहीं है। क्या आप मार्केट में जाके पूछ सकते हो भैया आधा किलो कॉन्फिडेंस दे दो? नहीं, ये सब कुछ आपके अंदर है। और जब फैज यहाँ पे पार्टिसिपेट कर रहा, मैं फैज को पहली बार मिल रहा हूँ, मैं आपको यहाँ पे डेमो करने वाला हूँ कि आप देखोगे कि किस तरीके से फैज अपनी अंदर की जो खुशी है ना, वो खुद कैसे ला सकता है। और ये आपको सीखना है, ये आप खुद कर सकते हैं। तो फैज जी सर, इसके लिए आपको मैं एक ऐसे इवेंट में लेके जाऊँगा जब आप बहुत खुश थे। यस सर। तो कोई इवेंट याद है जब आप बहुत खुश थे? Sir, once upon a time, sir, I was participating in elocution competition. Okay. And Alhamdulillah, sir, I got first prize. And Okay. on that time, sir, my father was present there. Okay. Alhamdulillah, that's my dream. Very good. So you remember when it happened?
So maybe 1 year before, sir. 1 year before. Yes, sir. तो फैज आपको यहाँ पे आना है बीच में. तो फैज आपको क्या करना है, आपके सामने एक ना सर्कल क्रिएट करना है, इमेजिनरी सर्कल. क्या आप क्रिएट कर सकते हो जिसके ऊपर आप कुछ समय में स्टेप इन करोगे? Yes, sir. I have created. वेरी गुड. एनी कलर वुड यू लाइक टू ऐड? Red color. रेड कलर. कैन सी अ रेड कलर सर्कल, लाल कलर का सर्कल. Yes, sir. वेरी गुड. ओपन योर आइज. तो अभी फैज राइट, Yes, sir. फैज के सामने एक सर्कल है. तो फैज जब भी वो सर्कल के अंदर जाएगा, पहले हम खुशी की, उसकी जो खुशी है उसको हम वहां पे स्टोर करेंगे, और उसके बाद जब भी वो उसके ऊपर खड़ा हो जाएगा वो खुशी अपने आप आएगी, जिससे वो कभी भी जिंदगी में खुश होना चाहता है तो उसको वो यूटिलाइज कर पाएगा. तो फैज इसके लिए आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले याद करना है वो इवेंट जब आप बहुत खुश थे, और जब मैं आपको कहूँगा तभी आप जा सकते हो. ओके, अपने आंखें बंद कीजिए और याद कीजिए वो इवेंट जब आप बहुत खुश थे, वो इवेंट हुआ था. क्या वो देख पा रहे हो? Yes, sir. वहाँ पे देखो, माहौल देखो, क्या माहौल था, ऐसा आपने क्या किया था जिससे आपको बहुत खुशी मिली थी, वो देखो. कुछ आवाजें अगर सुन पा रहे हो उसको सुनो और महसूस करो कैसे लगा था जब बहुत खुश थे, और फील करो एज इफ आप वहां पे अभी हो. कैसा लग रहा है फैज? So I'm really happy. वेरी हैप्पी. Yes. और उसके साथ आपके सामने लाल कलर का सर्कल है, उसके ऊपर खड़े हो जाइए. Yes, sir. आप आगे आइए और खड़े हो जाए. जैसे आप खड़े हो गए, फील कीजिए वो पूरी फीलिंग हैप्पीनेस की इस सर्कल के अंदर है. कैसा लग रहा है? Sir, I'm imagining that really. हाँ, यू आर इमेजिनिंग दैट. वेरी नाइस, वेरी नाइस. अभी सर्कल के बाहर आ जाओ, अपने आंखें खोलिए और पूरे ऑडियंस को देखो. अभी आप यहाँ पे हो, करेक्ट. कुछ समय के लिए आप अंदर गए थे Yes, sir. और आपको अच्छा लगेगा. अभी हमें क्या करना है, सिर्फ सर्कल में वापस जाना है और सिर्फ आप ही उसको एक्सपीरियंस कर पाओगे. Yes. इस बार जब आप उसके आगे जाओगे और सर्कल में रहोगे, आप उसको फील कर पाओगे. Yes, sir. आर यू रेडी फॉर दिस? Yes, sir. आपको पता है आपके सामने लाल कलर का सर्कल है, उसमें बहुत खुशी है जो आपकी खुशी है. जैसे आप स्टेप करोगे वो वापस आएगी. Yes. जस्ट गो एंड स्टेप ऑन दिस. क्या हो रहा है अभी? So I'm feeling that because I have set that mindset. Yes, you are feeling that. You are feeling wonderful, wonderful. Just come out. और ये आप आपके साथ ले सकते हो, सर्कल चाहिए तो, और आपके साथ रह Thank you, सकते sir. हो. और Thank जब you. भी आप चाहे खुश होना चाहते हैं, सिर्फ सर्कल पे खड़े हो जाओ, खुशी को फील करो जो आपके अंदर थी. जोरदार तालियां फैज Thank के you. लिए. थैंक Thank यू, you. थैंक यू, थैंक यू. तो आपने देखा कि मुझे पता भी नहीं फैज का वो इवेंट क्या है, क्या था, पर वो जो चाहता था वो उसके अंदर है. और एनएलपी में ऐसे काफ़ी सारे टूल्स एंड टेक्निक्स हैं. आज तो हमें कीनोट स्पीच दे रहा है, पर जब हम ट्रेनिंग लोगों को देखते हैं, हमने देखा है कि काफ़ी बार लोग इतने मायूस होते हैं और वो मायूसी खुद क्रिएट करते हैं, और इस ऐसी काफ़ी सारे टेक्निक्स के थ्रू वो महसूस करते हैं कि जो चाहते उनके अंदर सच सच में है, और वो आगे बढ़ता है. तो अभी ये जो टेक्निक है, सेम टेक्निक हम ग्रुप में कर सकते हैं. क्या आप इसको एक्सपीरियंस करना चाहोगे? पर इसका मतलब ये नहीं आपको खड़े होना है, उसके अंदर जाना है, नहीं. आपको क्या करना है, जो आप चाहते हो. कोई खुशी चाहेगा, कोई मोटिवेशन चाहेगा, कोई चाहेगा कॉन्फिडेंस. जो आप चाहते हो आप खुद उसको एक्सपीरियंस कर सकते हो. आपको उसके लिए क्या करना है, आपको जैसे कि कोई ऐसे हाथ होल्ड कर सकते हैं या फिर कोई सीने पे हाथ रख सकते हैं. कब रखना है? जब आपको मैं बताऊंगा, उसको एक्सपीरियंस करना है तब. तो इसके लिए आपको क्या करना है, आपको एक इवेंट के बारे में सोचना है जहां पे आप कोई एक्सपीरियंस को एक्सपीरियंस करना चाहोगे. तो सबसे पहले आपको सोचना है कि आप क्या एक्सपीरियंस करना चाहोगे. कोई कॉन्फिडेंस, कोई मोटिवेशन, जो भी है आप उसको पहले डिसाइड कीजिए और याद कीजिए एक ऐसा इवेंट जब आपने उसको एक्सपीरियंस किया था. एक ऐसा इवेंट जब आपने उसको एक्सपीरियंस किया था, और वहां पे जाइए जब वो इवेंट हुआ था और देखिए वहां पे क्या हो रहा था. उसको देखिए, कुछ आवाजें आ रही तो उसको सुनिए और महसूस कीजिए एज इफ आप वहां पे हो. और जैसे आपको वो फील हो रहा है ना, आप सीने पे हाथ रख सकते हैं. जैसे आपको वो फील हो रहा है आप सीने पे हाथ रख सकते हैं. गुड. और आपने किया तो अभी आंखें खोल सकते हैं. उसके बाद वापस सीने पे हाथ लगे और आप देखो कि आप जैसे अभी सीने पे हाथ लगे या फिर ऐसे टच करके वो सेम फीलिंग वापस आएगी. इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि कभी भी आप कुछ चाहते हो, जैसे इंटरव्यू के लिए जाते हैं और कॉन्फिडेंस कम हो रहा है,
तो आप ऐसे कुछ टेक्निक्स है उसको अप्लाई करके उस स्टेट में जा सकते हो, किसी के ऊपर आप डिपेंडेंट नहीं हो, और उसी की वजह से आप उसको फील कर सकते हो। तो ये ऐसी कुछ टेक्निक्स है जिसको हम एक्सपीरियंस करना चाहते हैं। तो अभी हम जब यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें सीख चुके हैं, अभी तक हमने क्या क्या सीखा है? एनीबडी वुड लाइक टू शेयर द एक्सपीरियंस? अभी तक हमने क्या क्या सीखा है? क्योंकि कुछ लोग अभी भी आ रहा है, तो हम आपसे सुनना चाहिए। एनीबडी प्लीज रेज योर हैंड, वुड लाइक टू शेयर एक्सपीरियंस। अभी तक क्या क्या हमने सीखा है? Good evening, sir. Yes. I learned from you that these things are very important. Communication, Okay. mental peace, and focus on your target. Okay. And imagine the things what is which gives you very happiness. Imagine your circle, your color, or any event, and feel that. Good. And imagine again it, and then you get the happiness. Lovely. Great. Thank you, sir. जोरदार ताली। वेरी नाइस। एनीबडी एल्स? क्योंकि कुछ लोग अभी भी आ रहा है, तो वो एक रिकैप हो जाएगा। और क्या क्या हमने सीखा है? क्योंकि इसके बाद Q&A सेशन में लेके किसी के सवाल है, आई लाइक टू आंसर देम। यस। So you teach me how to create your own happiness यस and sadness and any other emotion. Yes. Thank you, sir. थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच, वेरी नाइस। अभी हम काफ़ी सारे लोग आजकल पर्सनैलिटी की बात करते हैं कि मेरी पर्सनैलिटी ऐसी होनी चाहिए, वैसी होनी चाहिए, और हमने देखा है कि काफ़ी बार लोग ना पर्सनैलिटी के बारे में सोचते हैं, वो सोचते हैं यार मैं वैसा नहीं हूँ, तो हम पास में खुद को कंपेयर करते हैं। तो हमेशा याद रखना, व्हाट इज पर्सनैलिटी? पर्सनैलिटी मतलब आपकी पर्सनल रियलिटी। इज देयर एनीबडी एल्स वुड लाइक टू शेयर? यस यस यस। सर, काफी दिनों से एनएलपी क्या था ये सुनना था, आकर कुछ चीजें तो समझ में आई है, लेकिन आपने जो एक्सपेरिमेंट कराए हैं इसमें ये लगा कि ये एक्सपीरियंस तो हम कई बार कर चुके हैं जी। बट आज के सेशन में उसको एक नाम मिला है Yes. कि ये थिंग्स ये बिल्कुल। आज हमने ये समझा कि these are experience है ना, बहुत सारे हो चुका है हमारे Yes. पास। लेकिन आज हम इसको समझ पाए हैं कि ये क्या है, Absolutely. बॉडी से कैसे कनेक्ट होता है बिल्कुल और हम अपना ऑरा कैसे बना सकते हैं। बिल्कुल। आप एक टेंस माहौल में, टेंशन वाले माहौल में खुद को एडजस्ट कैसे करेंगे और अपने गोल्स तक कैसे जाएंगे, क्योंकि इतना कॉम्पिटिशन है किसी भी चीज को अचीव करने के लिए। आप खुद को काम में क्वाइट किस तरीके से रख सकते हैं टुवर्ड्स अवर गोल। यस, वंडरफुल, ग्रेट, बहुत बहुत शुक्रिया, ग्रेट। एनीबडी एल्स? हेलो हेलो। बहुत टाइम होगा उसके पहले। यस, इज देयर एनीबडी एल्स? Here is. Hi, sir. या, गुड इवनिंग। This is what like I have learned from you today, that every now and then we are just living through a stressful life. So putting our stress apart Yes. and just like concentrating on what were the golden moments of life. If you concentrate that, happily you can move ahead and achieve your target, whatever you have decided in your life. एब्सोल्युटली, Thank you so much. थैंक यू वेरी मच। हेलो सर। यस, सर हमारा एक प्रॉब्लम है, जब कोई हमको एक प्रॉब्लम फेस करना पड़ता, सॉरी, हमारा ये प्रॉब्लम है कि सामने वाले को कन्विंस करना नहीं आता हमको, और जब हमारी बारी आती है तो बहुत जल्दी कन्विंस हो जाते हैं। सो कैन यू प्लीज टेल मी व्हाट बेस्ट प्रैक्टिसेस आई हैव टू हैड इन माय लाइफ? ओके, एक क्वेश्चन है, कैन यू जस्ट रिपीट द क्वेश्चन? जब सामने वाले को कन्विंस करना होता है तो वो डिफ़िकल्ट जाता है और होता नहीं जल्दी कन्विंस, और जब हमारी बारी आती है तो हम जल्दी कन्विंस हो जाते हैं। मतलब आपका सवाल है, जब हम किसी को कन्विंस करना चाहते हैं वो कन्विंस नहीं होते, पर जब हमारी बारी है तो हम इजीली कन्विंस होते हैं। यस, तो आपका सवाल है हम किस तरीके से लोगों को कन्विंस करें इजीली। बहुत पावरफुल क्वेश्चन है। ओके, मेरा आप सभी से सवाल है, क्या आपको लगता है हमें किसी को कन्विंस करने की जरूरत है? क्या लगता है आपको, क्या हमें किसी को कन्विंस करने की जरूरत है?
एक्चुअली हमें किसी को कन्विंस करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप किसी को अगर सच में कुछ चीज़ बताना चाहते हो तो कन्विंस की जगह उसको इंस्पायर करो, क्योंकि जो इंस्पिरेशन जो आती है ना वो अंदर से आती है और मोटिवेशन आता है वो बाहर से आता है। तो जितना आप अंदर से, अगर आप, जैसे कि आपने जो सवाल पूछा, अगर आप खुद को अगर अंदर से खुद की काबिलियत पे ध्यान दो और खुद काबिल बनो तो आपको किसी को कन्विंस करने की ज़रूरत नहीं है। मेरा खुद का एक्सपीरियंस ये है कि आज 20 कंट्रीज़ में मैं लोगों को ट्रेन करता हूँ और इंडिया में सिर्फ 5 लोग हैं जो NLP के मास्टर ट्रेनर्स हैं और दुनिया में सिर्फ 80 लोग हैं, उसमें से आज मैं हूँ। जब मैंने ये चीज़ को सीखा था 12-13 साल पहले, तब मैंने सोचा नहीं था आज मैं यहाँ पे पहुँचूंगा, तो मुझे किसी को कन्विंस करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। मैंने ध्यान दिया कि मैं कैसे काबिल बन सकता हूँ, इसके लिए मैंने हज़ारों किताब पढ़ी। मतलब गोवा में मेरी खुद की बुक की लाइब्रेरी है, 1000+ बुक्स, और उसके नोट्स भी मेरे पास है। तो मैं आपको इसके लिए कह रहा हूँ क्योंकि ये बहुत अच्छा सवाल है। काफ़ी बार हम लोग सोचते हैं कि हमें कन्विंस करना है, हम यही कहते हैं कि आप खुद के ऊपर ध्यान दो और आपको काबिल बनाओ और लोगों को इंस्पायर करो। अगर आप वो करोगे तो डेफिनेटली आई थिंक लोग अपने आप आपसे कनेक्ट हो जाएंगे। एंड सर, हाउ टू से नो? हाउ टू से नो? जस्ट बाय सेइंग नो नो नो। हाउ टू से नो? बट द क्वेश्चन इज, डू यू वांट टू से नो? अगर काफी बार लोगों को अंदर से नहीं लगता ना बोलना है, राइट? हाउ टू से नो? सबसे पहले अगर किसी को ना बोलना है ना, तो सबसे पहले आपको अंदर से एक चीज आपको ध्यान में रखनी है कि आप कितने भी अच्छे हो, कितना भी अच्छा नेक काम कर रहे हो, हर कोई आपको पसंद नहीं करेगा। डू यू अग्री? यस। मतलब इतिहास गवाह है कि कितने अच्छे लोगों ने इतना काम करने के बावजूद भी कुछ लोग उनको पसंद नहीं करते। तो आपको सबसे पहले कोई चीज़ बोलने के लिए आपको शर्मिंदा होने की ज़रूरत नहीं है। अगर कोई चीज़ है तो आप दिल से बोलो, क्योंकि कोई भी चीज़ दिल से भी बोलते ना भी दिल से बोलते हो ना, कोई दिक्कत नहीं है। पर जितना हम उसके ऊपर लॉजिक लगाते, सोचने लगते हैं ना, डर अंदर से लगता है, और जितना आप अंदर से डरते हो वो रिफ्लेक्ट बाहर होता है। तो ना भी बोलना है तो प्यार से ना बोलो। इसके लिए एक सिंपल एक ही है चीज़, अगर आपको सच में ना बोलना है तो आपको पता है कि ये सच में ज़रूरी है, मुझे बोलना है, तो अंदर से वो विश्वास, अंदर से वो जज्बा रखो कि ये ज़रूरी है, मुझे बोलना है, बस आप कर दो, हो जाएगा। अमेजिंग, अमेजिंग, थैंक यू। थैंक यू। एनीबडी हैज क्वेश्चन? हाँ, तो जस्ट बिफोर द Q&A, एनी एक्सपीरियंसेस? ठीक है, मैं पर्सनैलिटी की बात कर रहा था, क्योंकि हर कोई चाहता ना अपनी पर्सनैलिटी बहुत बढ़िया हो। हाँ या ना? नान खलिया खा के शायद लोग आए हैं। अच्छा, तो याद रखना जो मैं कहता कि पर्सनैलिटी जो है मतलब क्या है, आपकी पर्सनल रियलिटी। मतलब आज मेरी क्या रियलिटी है वो मेरी पर्सनैलिटी है, पर हम प्रेजेंट में जब जी रहे हैं, पर हम प्रेजेंट में नहीं, हम पास्ट में हैं। और हम अभी भी सोच रहे यार मेरे साथ ये नहीं है, मेरे साथ वो नहीं, मेरे अंदर ये कमी है, मेरे लैंग्वेज में ये प्रॉब्लम है, और आप खुद को रोक रहे हो। तो हम क्या कहते हैं कि पर्सनल रियलिटी के लिए अभी के अभी अगर आप अपने बारे में अभी अगर अच्छा सोचना शुरू करोगे तो ये बहुत ज़रूरी है, आपकी पर्सनैलिटी बदल जाएगी। क्योंकि लोग आपके बारे में क्या सोच रहे हैं उससे ज़रूरी है आप अपने बारे में क्या सोच रहे हैं। क्योंकि आपकी ज़िंदगी के बारे में अगर कोई दिलचस्पी रखेगा और इंटरेस्ट रखेगा वो है आप, और अगर आप आपके बारे में अगर वैसा नहीं सोचोगे तो कौन सोचेगा। तो इसके लिए आपको याद रखना है कि अपनी पर्सनैलिटी पे आप कैसे ध्यान रखोगे। उसके लिए आपको क्या करना है कि नई चीज़ों को सीखना बहुत ज़रूरी है। जैसे मैं कल यहाँ पे एजुकेशन एक्सपो में आया था, क्योंकि आई वॉज वेरी एक्साइटेड अपार्ट फ्रॉम माई टॉक टू सी एजुकेशन एक्सपो, क्योंकि 2 साल से मैं परवेज भाई के थ्रू में इसके बारे में सुन रहा हूँ कि एजुकेशन एक्सपो क्या है, और मुझे कल देखना था। और मैं देख रहा था काफ़ी उर्दू की किताबें थी। आमतौर पे उर्दू की किताबें मिलती नहीं है, इंग्लिश की किताबें काफ़ी मिलती है। तो आई वॉज सो एक्साइटेड, क्योंकि किताबों से मेरा बहुत लगाव है। और मैं देख रहा था कि ये कितना अच्छा काम, नेक काम है। क्योंकि हम ऐसा कहते हैं, क्योंकि हम लीडरशिप में जब बात करते हैं तो हम कहते हैं कि लीडर जो है वो रीडर्स कहते हैं, जो लीडर्स है वो रीडर्स, पर ये उल्टा है। रीडर्स आर लीडर्स। जनरली वैसे लीडर्स आर रीडर्स, हम कहते हैं रीडर्स आर लीडर। मतलब जो पढ़ते हैं वही लीडर बनते हैं। मराठी में कहते हैं वाचाल तर वाचाल,
वाचाल तर वाचाल, मतलब पढ़ोगे तो ही बचोगे। तो ये बहुत ज़रूरी है कि जब भी आपको कोई डर लगता है, कोई चीज़ में आपको शक होता है, किताबें पढ़ना शुरू कीजिए, क्योंकि ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। आज आप कोई भी किताब मुझे पूछिए, स्पेशली पर्सनल ग्रोथ, मैंने वो पढ़ी है और मैंने अमल में लाई है, उसका बहुत फ़ायदा हो चुका है। तो बहुत ज़रूरी है। तो इसके लिए हम कहते हैं कि कोई भी इवेंट अगर आपके ज़िंदगी में होता है, कोई भी इवेंट हो, तो इवेंट से आपकी पर्सनैलिटी तय ही नहीं होती। सो इंग्लिश में हम कहते हैं इट्स नॉट अबाउट द इवेंट और सिचुएशन दैट क्रिएट्स योर रियलिटी। आप उसमें मीनिंग क्या दे रहे हो, इट्स द मीनिंग यू आर अटैचिंग टू दैट क्रिएट्स अ रियलिटी। मतलब कोई भी इवेंट या फिर कोई हादसा आपके लाइफ में हो रहा है, उससे आपकी पर्सनैलिटी बन ही नहीं सकती। आप उस इवेंट को क्या मतलब दे रहे हो। जैसे कि आपके लाइफ में कुछ रिजेक्शंस हुए हैं, आप फेल हो चुके हो, तो उसको फेलियर की जगह पॉजिटिव लो। जैसे थॉमस एडिसन, जिन्होंने लाइट का आविष्कार किया, आज हम इस रोशनी में है, पर आप सभी को पता है उन्होंने भी 1000 प्रयोग किए थे और इतनी बार फेल होने के बाद वो कामयाब बने। पर लोग उनको बोलते थे कि भाई साहब, आपका जो सक्सेस है उसके लिए आप इतनी बार फेल हुए। तो उसमें भी लोग फोकस कर रहे थे उनके फेलियर के ऊपर। तो उन्होंने उनको बहुत अच्छे तरीके से प्रेजेंट किया। उन्होंने बोला कि मैं 999 फेल नहीं हुआ हूँ, मुझे 999 अलग तरीके पता है लाइट को कैसे नहीं जलाया जाता है। तो उसी तरीके से आप अपनी ज़िंदगी में जो भी इवेंट हो रहा है, उस इवेंट जो हो रहा है उसको आप कैसे, किस नज़रिए से देखते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। गोवा में मेरी एक केस स्टडी है। मेरे एक स्टूडेंट जो गोवा यूनिवर्सिटी जो है वहाँ से गोल्ड मेडलिस्ट थे, और उनके लाइफ में कुछ ऐसे रिजेक्शंस आए, ऐसे मोड़ आए, ही अटेम्प्टेड सुसाइड, और उनको लगा ज़िंदगी ख़त्म हो गई। उन्होंने वो मतलब लगाया कि आज मेरे लाइफ में ये प्रॉब्लम है, मतलब मेरी ज़िंदगी ख़त्म हो गई। वो एक स्कॉलर होने के बावजूद ऐसे सोच रहे थे, पर जो उनको प्रॉपर गाइडेंस जब मिला और उन्होंने अपने सोच में बदलाव लाया और अपने कम्युनिकेशन में बदलाव लाया, जो मैंने आपको शुरुआत में कहा था CMF, आपकी कम्युनिकेशन, माइंडसेट और फोकस, ये 3 चीज़ों पे हमने ध्यान दिया था। हमें 1 साल लगा उनको ट्रेन करने के लिए, पर आज वो एक केस स्टडी है। आज वही गोवा यूनिवर्सिटी में वो आज प्रोफेसर है। ये रियल केस स्टडी मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ और प्राउड, फक्र महसूस कर रहा हूँ, क्योंकि वो पहले प्रोफेसर नहीं थे गोवा यूनिवर्सिटी में और ये इतने चैलेंजेस थे। पर बहुत अच्छा लगता है जब लोग ना अपनी काबिलियत को देखते हैं और आगे बढ़ते हैं। और हमारा फोकस भी यही है, NLP के माध्यम से हमारी जो यूथ है उसको कैसे हम काबिल बनाएं, बहुत ज़रूरी है। तो ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हर कोई हीरा बनना चाहता है, पर आपको पता है हीरा बनने की भी उसकी एक प्रोसेस है, उसके लेयर्स होते हैं, उसको तराशना पड़ता है। पर वो प्रॉब्लम से हम नहीं गुजरना चाहते। हीरा तो हर कोई बनना चाहता है, हाँ या ना? पर जैसे वो प्रॉब्लम्स आते हैं हम डर जाते हैं, यार इसको थोड़ा पोस्टपोन करते हैं। पर इस तरीके से चीज़ें नहीं होती। बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आप किस तरीके से खुद को काबिल बनाते हैं, किस तरीके से जितने भी चुनौतियाँ आएगी, चैलेंजेस है, उसको फेस करोगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ऐसी काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो मैं आपसे शेयर कर सकता हूँ और आपसे शेयर करनी है, पर मैं आपसे भी और जानना चाहूँगा और क्या क्या आप अभी तक आपने सीखा है। एनीबडी बिफोर वी गो टू द Q&A सेशन? Yes, I think you need to pass mic here, क्योंकि लोग अभी भी जुड़ रहे हैं। And I'm so happy, मतलब it's getting full. Good evening, sir. Myself Eman Fatima, and I followed you on so many social media platforms. I saw your so many videos on your own Facebook account and also on Parvez sir's YouTube channel. Today you taught the valuable life lesson that was never be afraid of failure, because the failure is the stepping stone towards the success. And Yes. always try your best to achieve your goals and success. Yes. Because, thank you. Thank you very much. See, these are few important things which you are taking away. I'm so happy that students are picking up the small learnings. कि आज हम फेलियर से इतने डरते हैं, क्यों डरना है? क्योंकि मैं नहीं कहता हूँ, ऋतिक रोशन कहता है डर के आगे जीत है।
राइट मतलब आप जब फेलियर को फेस करेंगे ना तभी वो जो कामयाबी का जो एक टेस्ट है ना वो आप टेस्ट कर पाओगे. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रहता है कि आप फेलियर्स को कैसे एक्सपीरियंस करते हैं. एनीबडी एल्स वुड लाइक टू जस्ट शेयर द एक्सपीरियंस? यस. और वी हैव अ लिटिल मास्टर हियर. Sir, my name is Kabir Khan. My question is, if I am telling something to someone and he doesn't understand what I am saying, so how to not get angry? How to not get angry? Yes. If when you're communicating with someone, if that person is not understanding, Yes. how to not get angry? So okay, this is a question. How young are you? 10 years old. 10 years old. Okay. Thank you very much for a question. Okay. इस उम्र में भी the best thing is change your focus. When you feel like you are getting angry, focus on something you love the most. So I'll ask you, whom you love the most? My parents. Yes. So that time just focus on your parents. So whenever you feel like angry, focus on your parents. And you'll see that because you're focusing on the love, your focus will change. And you'll see that you're still with that person, but you're not angry. अपना focus change करो. ठीक है? Thank you, sir. You're welcome. ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम फोकस किस चीज़ के ऊपर करते हैं. क्योंकि जब भी हमें गुस्सा आता है तो हम उनके बारे में ज़्यादा सोचेंगे तो और गुस्सा बढ़ेगा. तो ये बहुत ज़रूरी है कि फोकस को चेंज करें. और न्यूरो साइंस में हम कहते हैं कि एनर्जी फ्लोज where your attention goes. Energy flows where your attention goes, that thing grows. मतलब जिस चीज पे आपका ध्यान रहेगा, फोकस रहेगा, वो चीज बढ़ेगी. मतलब वो नेगेटिव है तो आप उसको और स्ट्रांग बना रहे हो बाय जस्ट फोकसिंग. जितना फोकस करोगे वो और बढ़ेगी. तो आपको क्या करना है? आपको तय करना है कि आपको फोकस क्या करना है. इनफैक्ट इसको आप एक्टिविटी कर सकते हो. सुबह जब आप घर से निकलते हो ना, कोई एक चीज जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है उस दिन के लिए और आपको उससे बहुत कुछ अच्छा सीखने के लिए मिलने, उस पर ही ध्यान दो. एक चीज दिन में, एक ही चीज. इससे क्या होगा? पूरा आपका फोकस उस पर रहेगा और आप देखोगे कि जो अनवांटेड चीज है उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देगा. और जैसे आप उस पर ध्यान दोगे वो चीजें भी आपको धीरे 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 उसकी इंटेंसिटी ड्रॉप हो जाएगी. तो वेरी इंपॉर्टेंट इज आप फोकस किस तरह से कर रहे हो. ओके, सो वी कैन यूटिलाइज द Q&A सेशंस और उसी में मैं और चीज़ें आपसे ऐड करूँगा. जैसे सवाल आप पूछेंगे मैं उसमें और चीज़ें आपसे ऐड करूँगा कि उसमें मज़ा आता है. सो एनी क्वेश्चंस? यस. सो आई एम सो हैप्पी वी हैव यंगस्टर 10 साल से अलग एज ग्रुप. एवरीबडी हैज डिफरेंट क्वेश्चंस. यस. Sir. Hello, हाँ, sir. yes, Faiz. Sir, if a person have any goal, but their parents are forcing to achieve different goal, so what we have to do, sir? Okay, so Faiz का एक सवाल है कि if I have a goal and the parents have a different goal, what to do? Yes, sir. What will you do? What do you want to do? Sir, I want to be a trader, stock market. Okay, good. Okay. ये होता है घर में? मुझे लगता है घर घर की कहानी है. सबसे पहले हमें ये जानना है कि पेरेंट्स का इंटेंशन क्या है. तो हम क्या करते हैं कि वो अगर कह रहे ये मत करो वो मत करो, पर उनका इंटेंशन क्या है वो भी जानना है. और उसी के साथ साथ ये बहुत ज़रूरी है कि आपको वो कैसे एक्सप्रेस करना है. तो जैसे कि सबसे पहले अगर आप जो बनना चाहते हो, अगर आप उनका एविडेंस उनको दोगे तो क्यों ना बोलेंगे? क्योंकि दे आर कंसर्न अबाउट यू. क्योंकि पेरेंट्स का सबसे बड़ा कंसर्न होता है उनका करियर क्या होगा. But sir, they are afraid from my goal. They are Afraid from my goal. yes, but it's very important that if because they don't know, they have no perception about it. You have a perception about it. कि आप क्या चाहते हो. Sir, my father also a trader, but sir, he have a small experience. That's why he is not. Yes, because there are bad experiences, there are good experiences. What is important is to you have your experience. तो उसके लिए आप simultaneously जो आप करना चाहते हो उसको करते करते और एक करियर को भी चूज कर सकते हो. Yes, sir, I have plan B. You have a plan B as well, right? Yes. Yes. So you can focus on that as well. The focus is अगर आप एक ही चीज पे अगर डिपेंड रहोगे,
then it can be a challenging thing for you. That is why parents are concerned. So yes, since you have a plan B, that's what we want. Okay? Thank you. हॅलो सर, तुम्ही ते माइंडसेटच्या बद्दल जे बोलला ना ते छान वाटलं. म्हणजे जे लिंबूचा जो वास वगैरे तुम्ही घ्यायला सांगितलं ना, हो. म्हणजे निगेटिव्ह टॉक वगैरे आपण नाही केलं पाहिजे आणि माइंडसेट क्लिअर राहिला ना तर आपण अचीव करू शकतो गोष्टी. म्हणजे आपण लिंबूचा वास सुद्धा एक्सपिरियन्स केला, म्हणजे माइंडसेटमध्ये आपण तो लिंबू आणून त्याचा म्हणजे वास सुद्धा एक्सपिरियन्स करू शकतो. इट्स मीन्स दॅट की आपण काही गोष्टी अचीव करू शकतो म्हणजे माइंडसेट क्लिअर राहिला तर. आपला प्रश्न काय आहे? नाही, आय एम लर्निंग फ्रॉम दॅट युअर. ओ लवली, येस सर. लवली, वेरी गुड लर्निंग. मराठी समझ में आती है आपको? व्हेरी गुड. मराठी म्हणजे हे चांगलं आहे. आता जे निंबूचा आपण अनुभव केला आहे, विच ऑल्सो मीन्स की जे आपण करू शकतो, जे आपल्याला पाहिजे त्याला आपण स्मेल करायला पाहिजे. आय मीन लिटरली नॉट स्मेल, बट इट्स ऑल अबाउट फोकस. कारण आपण काय करतो, फक्त त्याच्यावरच फोकस करतो. माझ्या आयुष्यात फक्त हेच आहे, हेच आहे, हेच आहे. फोकस चेंज करा. I'm so happy for your learnings. Nice. Thank you. Hello. Yes. Assalamualaikum to everyone and good morning to you, sir. Thank you so much for your session. So, summarizing your session, of course, we learn things like how to be happy. Yes. And how to create your own habit. But that's a psychological thing, which is a medication for people who are depressed or sad, to how to replace your negative thoughts into positive thoughts, which is really great. So my question is, that's temporary. Like you think about good things, Yes. you feel about good things. Yes, yes. That's temporary. Yeah. But how can you make it permanent? Because speaking about humans, Yes. that's like same is boring. Yes. Like you can have naan kaliya, one time good, two times boring, third time not so good. So Absolutely. how can you make it permanent? Like the thoughts on. Thank you. वेरी गुड क्वेश्चन, वेरी गुड क्वेश्चन. मतलब काफ़ी बार होता है कि हमें कोई पॉजिटिविटी मिलती है, मोटिवेशन मिलता है, कुछ समय के लिए मिलता है. सो व्हाट इज इंपॉर्टेंट, दिस इज टेम्पररी. तो सबसे पहले उसको परमानेंट करने के लिए टेम्पररी चीज़ें उसको रेगुलर करना भी ज़रूरी है. क्योंकि व्हेन इट इज रिपीटेड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वो आदत बन जाती है. वी नीड टू क्रिएट सम पैटर्न्स. आप देखो बुरी आदतें भी वैसे ही क्रिएट हुई है. उसको आप जितना बार बार टेम्पररी क्रिएट कर रहे हो, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इट बिकम्स अ परमानेंट. So what's important is here is there is no permanent solution to anything. Nothing. So it's all about being focused on what you want to do and just apply that. और yes, definitely उसमें और काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो हम कर सकते हैं. इसके लिए हम उसको आपको ट्रेनिंग में सिखाते हैं how we can get it done. जैसे हम उसको परमानेंटली, जैसे कि मैंने जो आपको केस स्टडी शेयर की थी, उनके भी सब ये प्रॉब्लम्स बहुत डीप थे. बट जब उस चीज़ को हमने रेगुलरली कंसिस्टेंटली किया, द रिजल्ट वाज डन. और हमेशा याद रखिए कि जितना हम ज़्यादा दूसरों के ऊपर डिपेंड रहते हैं ना, खुद के अंदर की कमियां और बढ़ेगी. पर जितना आप खुद के अंदर झांकोगे और जितना खुद को और डेवलप करोगे, यू विल सी दैट यू आर केपेबल टू हैंडल एनीथिंग. तो ये इंपॉर्टेंट है. थैंक यू. यस, एनी अदर क्वेश्चंस? यस. सर, ओवरथिंकिंग को बीट कैसे करेंगे? और जो नेगेटिविटी होती है, फॉर एग्जांपल कोई वर्क कर ली है और वो वर्क सबमिट हो गया, बट उसके कैंसिल होने के इम्कानात रहते हैं और कोई इश्यूज आते हैं, और वो बीट कैसा करेंगे? उसके बाद ओवरथिंकिंग रैपिडली बढ़ जाती है, तो उसको बीट कैसा करेंगे? ओके, इसके ऊपर मुझे आपसे एक सवाल है. जब हम ओवर थिंकिंग के बारे में सोचते, दिमाग में क्या आता है? तो एक तो सही होगा, नहीं तो गलत होगा. करेक्ट. आपको खुद से पूछना है, अगर ये होगा तो क्या होगा, उसे करेक्ट करना पड़ेगा. और वो होगा तो क्या होगा? सही होगा तो स्टेप. करेक्ट. तो क्या हमें पता है कि यह सही होगा या नहीं होगा पहले दिन? नो सर, बस एक वर्क स्किल आ गई है, उसके बिहाफ में काम कर रहे हैं. फॉर एग्जांपल एक फील्ड है अकाउंटिंग, अब आईटी रिटर्न फाइल कर दी है फॉर एग्जांपल. अब कुछ लग रहा है कि उसमें कुछ गलत होना है, हालांकि आईटी रिटर्न आता है, फिर भी ओवर थिंकिंग होती है. किस वजह से? क्योंकि हम ज़्यादा सोचते हैं, सोच को कॉम्प्लिकेटेड बना चुके हैं. जितना हम ज़्यादा थॉट्स अंदर रख रहे हैं उस चीज़ को लेके, ओवर थिंकिंग और बढ़ेगी. तो उसके लिए अंदर से देखना है कि कौन सी चीज़ें, जो अनवांटेड चीज़ें हम उसको लेके अंदर रख रहे हैं, उसको कम करो, और जो हो रहा है उसको फेस करो.
क्योंकि होना है तो होना है, क्योंकि उससे क्या होगा कि आपको एटलीस्ट वो कंट्रोल आ जाएगा. सो दैट्स द वे यू कैन एस्केप दैट थिंग. थैंक यू. यस, गुड इवनिंग. हाँ जी, एक तो जो मैंने अभी टेक्निक यहाँ पे सिखाई थी वो टेक्निक यूज़ कर सकते हैं. या फिर आपको क्या करना है कि जब आपको किसी से बात करना है और वो कॉन्फिडेंस की कमी है, तो सबसे पहले ऐसे इवेंट्स पे ध्यान दीजिए जब आप बहुत कॉन्फिडेंट थी. आई एम श्योर आपके लाइफ में ऐसे कुछ इवेंट्स हैं जब आप बहुत कॉन्फिडेंट थी. उस इवेंट्स को बार बार सोचो. जितने आप सोचोगे ना, आप उस इवेंट को रीलीव कर रहे हो, और उसी वजह से जब आप चीज़ को फेस करोगे वो चीज़ आपको बार बार याद दिलाएगी. मतलब क्या होना चाहिए कि जब भी हम इवेंट को फेस कर रहे हैं तो वो इवेंट है, वो इवेंट को देख के हम डरते हैं, पर वही इवेंट को जब हम ये बाकी पहले के इवेंट्स जहाँ पे आपने कॉन्फिडेंस को एक्सपीरियंस किया था उससे देखोगे तो आप देखोगे कि इसके पहले मैंने किया है. तो वो अगर अंदर से आपको फीलिंग आ रहा है कि बिकॉज मैंने ये पहले किया हुआ है एंड दैट इज वन ऑफ द रीजन आई कैन डू इट अगेन, दैट विल हेल्प यू टू बीट दैट एंजाइटी. यू वेलकम. तालियां होनी चाहिए. जितना डर के बारे में सोचोगे, जैसे मैंने बोला गुलाबी रंग के हाथी के बारे में मत सोचना था, क्या होगा? जैसे हम बोले कि सबसे पहले लैंग्वेज को चेंज करना है. जैसे हम बोलते हैं ना मुझे डर के बारे में नहीं सोचना है, तो क्या होगा? तो हमें क्या करना है? उसके ऑपोजिट बात करना है. डर के ऑपोजिट क्या है? जैसे कि करेज है, हिम्मत है, प्यार है, उस पर ध्यान दो. आप उस पर जितना ध्यान दोगे अपने आप ये चीजें कम हो जाएगी. हेलो, Yes. गुड इवनिंग सर. गुड इवनिंग. सर मैं आदिल शेख. मेरा क्वेश्चन था कि सर हर कंडीशन में स्टेबल कैसे रहे. जैसा कि सर कभी कोई बंदा मोटिवेटेड रहता, कभी डीमोटिवेटेड, कभी ओवरथिंक करता, कभी नॉर्मल, यस, कभी एकदम एक्टिव रहता, कभी लेजी. तो हर कंडीशन में मतलब स्टेबल कैसे रहे और कैसा मैनेज करे सर, ये मेरा एक अहम क्वेश्चन है सर आपसे. सबसे पहले एक्सेप्ट कीजिए कि हर दिन हम मोटिवेशन नहीं जी सकते. ये लाइफ का एक हिस्सा है कि दोनों चीजें, जैसे कि हम जब अगर 24 घंटा हम अगर खुश रहे तो क्या रहेगा? आप कुछ दिनों के बाद बोर हो जाएंगे, राइट? तो अगर हल्की सी मायूसी जिंदगी में आती है ना, तो खुशी की एक वैल्यू और बढ़ती है, उसकी अहमियत और बढ़ती है. तो एक्सेप्टेंस इज द की. एक्सेप्ट कीजिए कि हम इंसान है, हमारे पास इमोशंस है. तो ऐसा नहीं, एज अ मोटिवेशनल स्पीकर मेरे जिंदगी में भी कुछ चीजें होती है, मैं हो जाता हूँ. एक्सेप्ट कीजिए, दैट इज फाइन. जितना हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे ना, दिक्कतें बढ़ेगी. हम खुद को परफेक्ट देखना चाहते हैं, हर चीज में हम परफेक्ट है. दैट्स द प्रॉब्लम. परफेक्शन सिर्फ किताबों में है, वो डिक्शनरी में वर्ड है. तो एक्सेप्ट इज द की. आप सिर्फ एक्सेप्ट करो, इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ. कुछ दिन ऐसे रह गए, कुछ दिन ऐसे रह गए, मुझे क्या करना है उस सिचुएशन में? सिर्फ रिलैक्स रहना है. सर ये आप बताए एक्सेप्ट करना ये ज़रूरी है सर, लेकिन एक्सेप्ट करना मुश्किल होता है सर. तो उसके अंदर आसानी के लिए क्या मतलब? उसके लिए आपको एक ही चीज करनी है कि खुद से जब आप बात करोगे तो बार बार आपको बात करनी है कि मेरी जो जिंदगी है उसमें उतार चढ़ाव होते रहेंगे, और जितनी अच्छी चीजें हुई है उसके बारे में उस समय पे ज्यादा ध्यान दो. मतलब हमेशा याद रखना फोकस. जितना आप उस पर ध्यान दोगे कि आप बोलोगे ये हो रहा है पर कुछ समय के बाद ये भी होगा, तो जितना आप ध्यान फोकस चेंज करोगे ना, हिम्मत बढ़ेगी. सर मेरा एक क्वेश्चन है. यस, शोएब भैया. सर आई एम अ टेक्नोलॉजी ट्रेनर, और सर जब भी मैं लेक्चर डिलीवर करता हूँ ना, तो मुझे बहुत फिलर्स आते हैं, तो उसको कैसे अवॉइड करना चाहिए टेक्नोलॉजी में? ओके. Yes. तो आपको क्या लगता है ये कहाँ से आते हैं? सर टेक्नोलॉजी में फिलर्स नहीं आते. लाइक मैं जब बोलता हूँ, जब मेरे वर्ड खत्म होते हैं तो ठीक है, यू नो, लाइक ओके, इस तरह से मुझे फिलर्स आते हैं, तो उसको. यस, तो सबसे पहले जैसे मैंने कहा, इट्स क्वाइट फाइन इफ इट इज हैपनिंग. एक्सेप्ट कीजिए, क्योंकि हमारी खुद की एक पर्सनैलिटी है. इट इज नॉट परमानेंट. उस डर से हम बात ही नहीं करते. क्या बात नहीं करना उससे अच्छा है, या फिर कुछ तो बात करना इम्पोर्टेंट अच्छा है? इनफैक्ट एक टीम में हमारे एक स्टूडेंट
है उनका एक ही इशू था, स्टैमरिंग। और जितना वो ध्यान देती थी मुझे प्रॉब्लम है प्रॉब्लम, वो ज्यादा करती थी। सेम सर सेम। और जितना उन्होंने बिंदास बात किया ना, तो वो और अपने आप चला गया। तो एक ही चीज है कि हमें क्या करना है कि जो अच्छी चीजें आपके अंदर है उस पर ध्यान दो। तो अगर ये हो रहा है तो ठीक है, तो क्या मेरे अंदर अच्छी चीजें हैं उस पर ध्यान दो, और आप देखोगे कि अपने आप चली जाएगी। क्योंकि ना जितना हम इसके ऊपर ध्यान देंगे वो बड़ी बड़ी बन जाती है। तो उससे अच्छा और जहाँ पे जो अच्छी चीजें वो ध्यान दो, वो छोटी बन जाएगी। आई विल ट्राई सर, थँक यू। वेलकम। नमस्कार सर, माझा एक प्रश्न आहे की माझ्यासमोर एक अडचण आहे। मला ना नवीन वातावरणामध्ये ना जुळून घ्यायला थोडंसं अडचण जाते, म्हणजे नवीन मित्र बनवणं, स्पेशली अपोजिट जेंडर। तर म्हणजे या सिच्युएशनला कसं हँडल करायचं? म्हणजे नवीन एन्व्हायरमेंटमध्ये होतं की जिकडे तुम्ही आहात तिकडं पण होतात? सगळीकडे एक न्यूनगंड आहे मनामध्ये, थोडंसं नवीन मित्र बनवणं किंवा नवीन ग्रुप बनवणं, यामध्ये तुला अडचण जाते। माझा तुमच्या एकच प्रश्न आहे, हे गरजेचं आहे का तुम्हाला? काय वाटतं तुम्हाला? इज इट इम्पॉर्टंट टू चेंज इट? येस सर, म्हणजे मला वाटतं की चेंज व्हायला पाहिजे। ओके पण ते मला करता येत नाही। ओके, तर एक तर मेंटर चूज करा। एक कोच जर असणार तो कोच तुम्हाला ट्रेन करू शकतो। सेकंड थिंग इज आपली जी पर्सनॅलिटी आहे जशी आहे तीच युनिक आहे, आणि त्याच्यात आपण वेगळं काय करू शकतो, वी कॅन कीप ऑन डुईंग इट। सो वाय इट इज हॅपनिंग? बिकॉज इंटरनल कम्युनिकेशनमध्ये काहीतरी आहे, समवेअर यू आर स्टॉपिंग युअर सेल्फ, की हे कमी आहे, हे कमी आहे, हे कमी आहे। स्टार्ट चेंजिंग दॅट अँड स्टार्ट बीइंग द वे यू आर। जेवढं तुम्ही स्वतःला बघणार जसं मी आहे, इट विल हॅपन नॅचरली विथ यू। कारण वन्स अपॉन अ टाइम आय वॉज अ प्युअरली इंट्रोवर्ट, आणि मी स्कूलमध्ये कधीही पब्लिक स्पीकिंग पार्टिसिपेट नाही, कधीही नाही। माझे जे टीचर्स आहेत दे गेट सरप्राइज वेन दे सी मी ऑन द स्टेज, बट देन आय सेड व्हॉट्स इम्पॉर्टंट फॉर मी इज बीइंग माय सेल्फ, अँड इट जस्ट हॅपन। तर स्वतःवर विश्वास ठेवा अँड जस्ट गो विथ द फ्लो। वेलकम। Good evening, sir. गुड इव्हनिंग। Actually, I am preparing for UPSC, and UPSC is like marathon. आप स्टार्टिंग में तो बहुत मोटिवेटेड होते हो, बिल्कुल। फिर आप अपने प्लान्स को अचीव करने में फेल भी होते हो, फिर अपने आप को मोटिवेट भी करते हो। स्टार्टिंग में तो बहुत ज़्यादा मोटिवेशन होता है, फिर एक वक्त आता है कि आप ऐसा गिरते हो कि तो उठना बहुत मुश्किल हो जाता है। यस। तो किस तरह किया जाए? आपने इतिहास में देखा है कि जितने भी कामयाब लोग हैं वो भी वैसे गिरे हैं। इलॉन मस्क जो आज एक अलग ही रेवोल्यूशन कर रहे हैं, उन्होंने भी जितने रॉकेट्स उन्होंने लॉन्च किए वो भी गिर चुके थे। तो इम्पॉर्टेंट ये है कि आप मोटिवेशन ज़्यादा इंस्पिरेशन कितना ले रहे हो, क्योंकि जितना आप लोगों से इंस्पिरेशन लोगे, आप लोगों को देखोगे कि किस तरीके से ये लोग निकल चुके हैं, उससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। और तैयार हो जाओ, मतलब अगर नहीं हुआ तो क्या होगा? It's not the last page of your life, isn't it? Yes, sir. You have a new beginning. At the most, अगर नहीं हुआ तो उससे और कुछ तो होगा। हमेशा याद रखना, there is no failure, only feedback. मतलब कोई भी चीज है उससे मैंने क्या सीखा, हमेशा एक ही चीज आप हमें खुद से पूछना है कि इससे मैंने क्या सीखा है। That's it. And treat failure as a stepping stone for your success. अगर वो ये नहीं हुआ, कहीं ना कहीं उसका फायदा होगा। Yes. Okay? Thank you. You're welcome. सर माझा एक क्वेश्चन आहे सर, एक प्रिपरेशन करताना एक काम करायला गेलं सर, ते काम थोडंसं झाल्यानंतर मनात दुसरं येतं काय, तर आमचं डायव्हर्ट होते मग, तर त्यासाठी सर काय करायला लागेल? दुसरं काय ते मला माहित नाही। म्हणजे सर दुसऱ्या गोष्टी अशा म्हणजे दुसरीकडचं आठवत म्हणजे असं हे होतं ना, हो, कॉन्सन्ट्रेट। येस, हो, करेक्ट. अँड दॅट इज कॉमन नावडेज, कारण त्याला आपण ट्रिगर म्हणतो। काहीतरी इव्हेंट्स ह्याच्यापूर्वी झाले ते इम्पॅक्ट करतात, आणि व्हॉट यू कॅन डू इन दिस टाइम इज, कुठली अशी गोष्ट आहे जी तुम्हाला इम्पॉर्टंट आहे? मला सर बँकिंगचं प्रिपरेशन करतोय, हो, पण इथं आल्यानंतर असं ज्यावेळेस आपण स्टडी करायला लागतो त्यावेळेस तर म्हणजे असं दुसरं थिंकिंग गावाकडच्या वगैरे अशा वेगवेगळ्या गोष्टी अशा मध्येच येतात, आणि ते अभ्यास करतोय बाजूला आणि त्याच गोष्टी जास्त। ओके, तर तुम्ही तुमचा जो रूम आहे तिकडं किती गोलचे पोस्टर तुम्ही पेस्ट केले आहे? पोस्टर आहे म्हणजे किती आहे? 4-5 आहेत.
4-5च आहे, त्याला 50 करू शकतात का? म्हणजे रूममध्ये तुमची एरिया एवढी कव्हर करा की जे कधीही तुम्हाला जो थॉट येणार ना, फोकस विच शुड बी ऑन युअर गोल्स. म्हणजे स्वतःचे जे लक्ष आहे, गोल्स आहे, तेवढे एवढे मोठे करा की हे प्रॉब्लेम्स एकदम लहान होणार. कारण त्या मुमेंटमध्ये कंट्रोल तुमच्यावर नाही आहे, ते इव्हेंट्स तुम्हाला कंट्रोल करत आहे. पण तुमची जी सराउंडिंग्स आहे ती जर स्ट्रॉंग तुम्ही केली तर ऑटोमॅटिक ना तुमचा फोकस चेंज होणार. म्हणजे महत्त्व जास्त याला द्या गोल्सवर, आणि त्याच्याकरिता गोल्सचे पिक्चर्स स्टिक करा, त्याला आपण म्हणतो विजन बोर्ड्स. जेवढे तुम्ही ते विजन बघणार ना, माइंड विल गेट एंगेज विथ दॅट, बिकॉज आय हॅव एक्सपिरियन्स इट. आणि हे कॉमन आहे, म्हणजे इट्स हॅपनिंग, आणि दिस हॅज हेल्प मी. आणि कधीही कधी मला वाटत होतं आय स्टार्टेड रीडिंग बुक्स, आणि दॅट हॅज हेल्प मी. वेगळी नवीन कुठली तरी एक हॅबिट डेव्हलप करा आणि यू विल सी दॅट इट इज गेटिंग चेंज. सर आपण अभ्यास करताना ते वाचतोय तर कंटिन्यू हो, ते काय वाचतो आपल्याला नंतर डायव्हर्ट झाल्यानंतर मग ते कळत नाही, वाचतोय कंटिन्यू राहते पण ते परत लक्षात राहत नाही काय. हो, त्याच्याकरिता तुमचा फोकस जर तुम्ही गोलवर ठेवणार ना तर तुम्ही तो एस्केप करू शकत नाही. तो प्रॉब्लेम तो असणार, पण त्याला मिनिंग काय देतात तुम्ही? परत परत त्याला म्हणतात नाही हा मला प्रॉब्लेम करत आहे, हा मला हे करायचं, तर त्याची इंटेन्सिटी आणि वाढणार. तर त्याच्याशी बोला, ये बाबा ये, काय आहे तुझं प्रॉब्लेम? हा आहे, चल बघू आपण. कन्व्हर्स विथ युअर प्रॉब्लेम, हॅव अ कन्व्हर्सेशन विथ युअर प्रॉब्लेम. म्हणजे जेवढे त्याच्याशी बोलणार ना, त्याला मुलासारखं बोला त्याला, आणि यू विल सी दॅट हळूहळू त्याची इंटेन्सिटी कमी होणार. ओके. अस्सलाम वालेकुम सर, आई एम सारा. हमारा क्वेश्चन ये है कि अपन तो बहुत ज़्यादा मतलब मोटिवेट तो रहते हैं, अपन करना तो चाहते हैं, लेकिन लोग ये बोलते हैं कि आप नहीं कर सकते. हम फर्स्ट तो आ जाते लेकिन बोलते हैं वो गलती से हो जाता, अगली बार आप नहीं कर सकते. तो इसमें अपन क्या करना चाहिए? अपन फिर से मतलब अपना दिल नहीं चाहता कि फिर से करना, अपने को भी ऐसा लगता है कि अपन नहीं कर सकते, तो अपन क्या करना चाहिए? तो लोगों का काम है कहना, लोग कहते रहेंगे. हाँ, तो यस, हम ये स्टॉप नहीं कर सकते क्योंकि ये चलता रहेगा. पर अगर आप अपनी सराउंडिंग्स में ऐसे कुछ दोस्त जो आपके ऊपर बहुत भरोसा रखते हैं, जो आपको कहते हैं कि आप कर सकते, कम से कम 4 से 5 ऐसे दोस्त बनाओ जो आपको बार बार कहते हैं कि आप कर सकते हो, आप कर सकते हो, आप कर सकते हो. तो उसमें क्या होगा, लोग बोलेंगे तो भी आपके साथ ऐसे कुछ लोग हैं जो आपको कहेंगे कर सकते हो, उससे आपको बहुत हौसला मिलेगा. तो आपकी सराउंडिंग्स को चेंज कीजिए, अपने एसोसिएशन को चेंज कीजिए, अच्छे दोस्तों के टच में रहिए, अच्छी चीज़ों को सीखिए, क्योंकि ये चीज़ ऐसी है कि ये चलती रहेगी. पर अगर जितना आपका जो फोकस है वो ऐसी चीज़ों पे रहोगा जहाँ पे आपको लोग और हिम्मत दे रहे, और सपोर्ट कर रहे, तो आपके अंदर की और एनर्जी बढ़ेगी. ठीक है. गुड इवनिंग सर, आई एम प्रिपरेशन टू 10 बोर्ड्स. ओके. हम जब भी मोटिवेशनल वीडियो देखते हैं तो हम पहले तो मोटिवेट हो जाते, हम ये चीज़ करेंगे, लेकिन जब ये चीज़ हम करते Yes. तो हमारा पूरा मोटिवेशन ख़त्म हो जाता कि अब नहीं होगा, और हम सारा मोटिवेशनल नहीं चल जाता हमारा, और हम वो काम नहीं करते फिर. तो क्या करना हमने फिर? यस, सही बात किया आपने. ये जो मोटिवेशनल वीडियोस वगैरह टेम्पररी है, वो आपको टेम्पररी मोटिवेशन देगा. तो इसके लिए आपको क्या करना है कि आपको ऐसी चीज़ों पे ध्यान देना है जो जिसके ऊपर आप डिपेंड नहीं हो, जो आपके लिए इंस्पिरेशन हो. मोटिवेशन ज़्यादा इंस्पिरेशन मिलना ज़रूरी है. तो आपको क्या करना चाहिए कि आपको ऐसी लिस्ट ऑफ थिंग्स बनाइए जो आपने हासिल किए. आई एम श्योर आपकी ज़िंदगी में आपने कुछ ना कुछ तो ऐसा हासिल किया है जिससे आपको बहुत प्राउड फील हो रहा है. तो वो लिस्ट बनाइए, अपना ना एक जर्नल बुक बनाइए, और उसमें ना उसको लिखिए, और चाहिए तो कुछ इमेजेस है तो पेस्ट कीजिए. और जब भी आप लो फील करते हो उसको देखना शुरू कीजिए, क्योंकि आप खुद की कुछ अचीवमेंट देखोगे ना, वो मोटिवेशन अंदर से आएगा और आपके साथ रहेगा. और जितने हम बाहर से मोटिवेशन देखेंगे वो टेम्पररी है, पर ये अगर आप गौर करोगे अपनी चीज़ों के ऊपर जो आपने अचीव किया, दैट विल डेफिनेटली हेल्प यू. थैंक यू सर. चेक. ओके, मुझे पता है और भी सवाल है, पर yes, we have a time limit, and I'm so grateful to everyone for your great response. मुझे लगता है कि जोरदार तालियां होनी चाहिए आपके लिए. लास्ट क्वेश्चन सर. Last question. या सर. Okay. Yes. Hello. Yes.
Assalamu alaikum. Yeah, I'll go this question and quickly. Sir, you're talking about be focused. But my question is how to be focused all the time. Very Like good question. sometimes you are dwelling in Yes. past. Yes. Sometimes you are overthinking about future. Yes. But how to be focused all the time? Very good question, because people say, do it. How? List of things which is important for you, which will change your focus. Make the list of things. What are the things which you do that will change your focus? This is one thing. Second thing is change your association. The people who always give energy to you, have those things with you. So doing these things and having a right association will naturally change your focus. But how to be present at present? How to? Be present in present. How to be present in the present? Yeah. Just by experiencing what is happening at that time. Just be with that. Instead of going in the future or past, just focus on right now. Just ask this question. What is important for me now? Whenever you feel like you're going past and future, ask yourself, what is important for me now? That's it. And just do that. All right? Okay. So thank you very much. I'm really grateful to the organizers and the committee and all dignitaries of it. Thank you so much, sir. Thank you so much. Thank you. So it was a great session conducted by one and only world's renowned motivational speaker, NLP Master Trainer Suren Kolkankar. Give him a big round of applause. No, this is not Aurangabad. पता चलना कि औरंगाबाद की तालियां. Once more, नान खलिया दिखाओ, नान खलिया. Because he had नान खलिया in the morning. नान खलिया उन्होंने खाया है और वो देखना चाहते हैं नान खलिया की ताकत कितनी है. Once more, please give your big round of applause. Thank you so much, sir. Thank you. So it was a great session, a very interactive session here. I thank everyone. I thank the organization for inviting Mr. Suren Kolkankar. I thank everybody, those who have come here by watching the post and all, and to listen to Mr. Suren Kolkankar. Now this is the time to felicitate Mr. Suren Kolkankar. He's on the way from Goa. Conducts his training programs in more than 20 countries, and he not only trains, he coaches personally. He's a business coach, he's a counselor, he's a healer, and the great human being. He's a great human being. Believe me, he's a great human being, because for last 5 years I have been with him and I'm his student. I know what he does. So I request management to felicitate Mr. Suren Kolkankar, sir. कब कहाँ कौन सी बात कही जाती है, ये अगर हुनर हो तो हर बात सुनी जाती है, हर बात सुनी जाती है. Thank you so much. Now little thing is, as one of our Aurangabad teacher, Sayyid Irshad sir, I would request him to come on stage, because he is being awarded for national award in Patna, and soon he will be awarded 2 national awards. So I request Irshad sir to be on stage, and Irfan Saudagar sir to felicitate him. Please, Irshad sir. Please give him a round of applause. Irshad sir is from Aurangabad. He is one of the finest English teacher. So congratulations sir from the organization. Yes, so it was the prime time, one event. After this, we have another program where our dear principals will be rewarded for their contribution, for their hard work, and for dedication. So I wish you all the best. And once again, thank you so much, management, for inviting us here and to have this training, this program. Thank you so much. Allah Hafiz.